بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک کم سن خوبصورت لڑکی کی ہے جو کہ ایک ایسا کام کرتی تھی جس کے بارے میں سن کر کسی کو بھی یقین نہیں ہوگا، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ سن کر آپ لوگ ضرور حیران رہ جائیں گے۔ یہ کہانی وہ لڑکی اپنی زبانی ہی سنائے گی۔ میرا نام مہمونہ ہے۔ ہم لوگ زیادہ امیر تو نہیں تھے، لیکن ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا اور میں اور میرے والد صاحب چچو کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک ہی گھر تھا اور یہاں پر خوشی خوشی ہم رہتے تھے، لیکن اب اس گھر کے حصے ہونے کا معاملہ آیا تو میرے چچو نے میرے والد صاحب کو دھوکہ دیا اور آدھے سے زیادہ حصہ اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کے حصے کے پیسے بھی کھا لیے۔ ہمارے پاس صرف ایک کمرہ اور اس کے سامنے ایک چھوٹے سے لان جتنی جگہ تھی۔ میرے والد صاحب شریف آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی سے لڑ نہیں سکتا، اپنا حق چھوڑ دیا اور ایک طرف ہو گئے۔ اب ہمارے گھر کے حالات بھی برے ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے ہم لوگ کوٹھی والے امیر لوگ تھے اور اب ہم لوگ ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے والے غریب لوگ بن گئے۔ میرے والد صاحب کی میں اکلوتی اولاد تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا رشتہ بہت اچھی جگہ پر ہو جائے، لیکن اب اس گھر میں کہاں سے اچھا رشتہ آنا تھا؟ لوگ تو گھر ہی دیکھتے تھے۔ ایک کریانے کی دکان والے کا رشتہ میرے لیے آیا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ کم سے کم اس کے گھر میں کھانے پینے کے لالے تو نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی اپنی کریانے کی دکان ہے اور لڑکا میں نے دیکھ لیا ہے، اچھا انسان ہے، اسی کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ویسے بھی کچھ نہیں ہے، سارا کچھ اپنوں نے لوٹ لیا ہے اور اس کو جہیز بھی نہیں چاہیے۔ میرے ہونے والے شوہر کے گھر میں اس کی ایک ماں تھی اور ایک بہن جس کی شادی تو ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ یہ شریف لوگ ہیں اور شرافت سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے، وہاں پر رہنا تھا۔ ہمارے حالات اس قدر برے ہوتے جا رہے تھے کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ میں بھی اپنے والد صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان کو ایک دفعہ بھی اپنے دل کی کوئی بات نہیں بتائی، چپ چاپ شادی کر لی۔ ان لوگوں کا ایک بہت ہی پرانا سا گھر تھا۔ یہ گاؤں بھی شہر سے کافی دور تھا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ بچی شہر میں رہی ہے، گاؤں میں کس طرح رہے گی؟ پر میں نے اپنی ماں کو تسلی دی کہ جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے، اپنوں کا ساتھ ہونا چاہیے تو ہر جگہ ہی اچھی لگتی ہے۔ کہہ تو میں نے دیا تھا، لیکن میں خود بھی کافی پریشان تھی۔ میں ان کے گھر میں آ گئی۔ میرا کمرہ بھی بہت پرانا تھا اور میرے کمرے سے کھڑکی ساتھ والے دربار میں کھلتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کھڑکی کو بند ہی رکھنا، اس طرف کافی مرد ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے کھڑکی کھولنے کا ویسے بھی شوق نہیں ہے، میں نہیں کھولوں گی۔ گھر دربار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر میں کھانا وغیرہ بھی آ جایا کرتا۔ میری نند کو کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر میرے کمرے میں آ جاتی اور کہتی کہ یہ کھڑکی کھول کر وہاں سے چاول وغیرہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہارے بھائی نے منع کیا ہے، اس کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کرے گا۔ پر میری نند کہتی کہ وہ تو کام پر گیا ہوا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ کھڑکی کھول کر صرف ہاتھ باہر کرتی اور وہاں پر نیاز بانٹ رہے ہوتے تھے تو وہ چاول کا ایک شاپر اس کے ہاتھ میں بھی پکڑا دیتے اور یہ کھا پی کر مزے سے خوش ہو جاتی اور پھر اپنے بچوں کو بھی بھیج دیتی۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو 10 اور 12 سال کے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ اس کو موٹاپے کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ یہ اتنا زیادہ کھانا کھاتی تھی، اتنی موٹی ہو گئی کہ گھر کے دروازوں میں سے بھی گزرنے سے اس کو مسئلہ ہوتا۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور اس کو واپس بھیج دیا تھا۔ یہ ابھی تک اپنے شوہر کے نکاح میں تھی، لیکن وہ اسے لینے نہیں آتا تھا۔ میں نے ساری زندگی اپنے گھر میں کنجوسی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس گھر میں بہت ہی کنجوسی سے کام لیا جاتا۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مجھے بھی پتا تھا کہ میرے شوہر کے حالات اچھے نہیں ہیں اور میرے باپ کے بھی، اسی لیے سوچا کہ مجھے خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ گاؤں میں ایک ہی بیکری ہے، وہاں پر بھی بہت اچھی چیزیں نہیں ملتی۔ اگر وہاں پر تم کوئی چیز بنا کر رکھ دو تو ہاتھوں ہاتھ بک جائے گی، آدھے پیسے تمہیں مل جائیں گے اور آدھے پیسے دکان والا رکھ لے گا۔
मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि ये काम करना चाहिए और बहाना बनाकर बेकरी वाले के पास भी गई। उससे बात भी की। उसने कहा कि बाजी, आपको पहले कोई सैंपल दिखाना होगा। वो काफ़ी अच्छा इंसान था, उसने मेरी बात रद्द नहीं की। उसने कहा कि सैंपल दिखा दें, अगर चीज़ मज़ेदार हुई तो मैं दुकान पर रख लूँगा। थोड़े बहुत सलामी के पैसे बचे हुए थे। मैंने सोचा कि मैं कोई चीज़ बनाकर उसको दिखा आती हूँ। मैं घर में मिठाई बना रही थी जो कि मुझे बहुत अच्छी बनानी आती थी। मैंने बर्फ़ी बनाई थी, लेकिन मेरी नंद को ये बात पता चल गई और उसके बच्चों ने जब मुझसे मांगी तो मैंने कहा कि ठीक है, 1 पीस ले लो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दे सकती क्योंकि मैंने किसी और के लिए बनाई है। उन्होंने जाकर ये बात अपनी माँ को बता दी। मेरी नंद का कहना था कि बच्चे मांग रहे तो क्यों नहीं दे देती, किसके लिए बनाया है? अपने माँ बाप के लिए बनाई है क्या? हमारे पैसों से अपने माँ बाप के लिए मिठाइयाँ बना रही हो? मेरी नंद ने मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं भी नहीं दे सकती, जब घर वालों के लिए बनाऊंगी तो जितना मर्जी खा लें, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं कंजूस नहीं हूँ तुम लोगों की तरह। इस बात पर उसने वो वावेला मचा दिया और गुस्से में आकर उसने सारी मिठाई ज़मीन पर गिरा दी। ये बात मेरी सास को भी पता चल गई और ये भी पता चल गया कि मैं क्यों बना रही थी। उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई कि हम औरतों की कमाई नहीं खाते, ये तुम्हारे माँ बाप के तौर तरीके होंगे, हमारे नहीं हैं। मेरे शोहर को भी उन्होंने खूब मिर्च मसाले लगाकर ये बात बताई। मिठाई खिड़की के सामने ज़मीन पर गिरी हुई थी। मैं उसको देखकर रो रही थी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी और बात सिर्फ मिठाई की नहीं थी। मैंने सोचा था कि कोई कारोबार शुरू करूंगी तो इस घर में 4 पैसे आ जाएंगे, इससे सबका फ़ायदा होगा। मेरी नीयत साफ थी, लेकिन मुझे गलत समझा गया था, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मेरा शोहर कमरे में आया तो उसने मुझे डांटा नहीं। उसने कहा कि तुम कुछ अच्छा करना चाहती हो, लेकिन अम्मी को ये सब कुछ पसंद नहीं है, इसीलिए तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। ये गांव छोटा सा है, यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन ये घर हमारा अपना है, इसलिए हम यहाँ से जा नहीं सकते, नहीं तो फिर किराया कौन देगा, और दुकान भी मेरी अपनी है। मैं सोचता हूँ कि दुकान पर कोई और चीज़ रख लूँ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते। मेरे शोहर ने मुझे समझा दिया। मैं रात को भी उसी मिठाई को देखते देखते सो गई जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसको उठाने की भी मुझ में हिम्मत नहीं हुई, वहीं पर पड़ी रही और मैं सो गई। लेकिन सुबह जब आँख खुली तो वो जगह बिल्कुल साफ थी और खिड़की भी खुली हुई थी। मैं हैरान हुई कि खिड़की किसने खोली है। मेरा शोहर सो रहा था, अगर वो देख लेता तो बहुत गुस्सा करता, क्योंकि दरबार में तो सुबह ही लोग आना शुरू हो जाते थे और ये वो कमरा जहाँ पर हम सोते थे, इसलिए खिड़की खोलने का तो कोई जवाज़ ही नहीं था। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और ये देखकर हैरान रह गई कि मिठाई कहाँ चली गई। ये ज़मीन पर तो गिरी हुई थी और काफ़ी गंदी भी हो गई थी, खाने के लायक तो थी नहीं। फिर सोचा कि कहीं मेरी नंद के बच्चे तो नहीं खा गए, उनको तो जो भी मिल जाता था वो खा लेते। इतने भूखे बच्चे और ऐसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी थी। पता नहीं ये इस दुनिया में सिर्फ खाना खाने के लिए आए थे। मेरी नंद के बारे में रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि ये खाने की बहुत शौकीन है, इसको लगता है खाने की कोई बीमारी है, क्योंकि एक आम इंसान तो इतनी खुराक नहीं खा सकता। अच्छी भली दुबली पतली होती थी, खा खा कर मोटी हो गई है। इसी चक्कर में इसने अपना घर भी बर्बाद कर लिया। खुद सोचो कि खाने के लिए झगड़े कौन करता है। और ये इसकी सास नंद के साथ भी यही झगड़े करती रहती थी कि मेरा खाना पूरा नहीं हो रहा। शौहर को भी हर टाइम खाने की फरमाइश करती। वो लोग भी इनकी तरह गरीब ही थे, उसकी इतनी गैर इंसानी खुराक कहाँ से पूरी करते। अब मैं इसको कुछ भी नहीं कहती थी। मैंने पहले भी उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गई थी। एक दिन मैं शाम को अपने कमरे में बैठी थी और सोच रही थी कि जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, अब क्या करूं? कुछ न कुछ तो मुझे करना था। मैं इस तरह से नहीं जी सकती। मैं खुद भी यही चाहती थी कि मेरे पास 4 पैसे हों तो मुझे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए शोहर का दिमाग न खाना पड़े और उसे तंग न करना पड़े, क्योंकि वो मुश्किल से ही इस घर का सारा खर्चा चला रहा था। अचानक से तेज़ हवा आई और खिड़की खुली। मैं खिड़की बंद करने लगी तो एक आवाज़ पर चौंक गई। ये आवाज़ थी कि क्या तुम और मिठाई बना सकती हो?
मेरा दिल न जाने क्यों बैठ गया और कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये कौन था? किसी मर्द की आवाज़ थी। शायद वो खिड़की की दूसरी तरफ बैठा था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे कमरे में तो अंधेरा था। मैं तो उसको दिखाई नहीं दे रही थी। दरबार में रोशनी होने के बावजूद भी वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की तो उसने कहा कि देखो, मेरी बात को समझो। तुम्हारे हाथ की बनी मिठाई मैंने खा ली थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। मुझे और भी खानी है। अगर तुम बना दो तो मैं तुमसे ख़रीद लिया करूँगा। मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बना सकूँ। और अचानक ही कुछ पैसे खिड़की से अंदर आ गिरे, मेरे कदमों के पास ही पड़े थे। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा कि मुझे ये पैसे नहीं लेने चाहिए। मैं उसे वापस करना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि रख लो और इन पैसों से मिठाई बना लेना, मैं तुमसे ख़रीद लिया करूँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये कैसे कहा कि मैंने ही वो मिठाई खा ली थी। तो इसका मतलब कि रात को जब खिड़की खुली हुई थी तो उसने हाथ अंदर बढ़ाकर वो गंदी मिठाई खा ली थी और शायद उसको इतनी पसंद आ गई कि वो खुद पैसे देकर कह रहा था कि मेरे लिए मिठाई बना दो। मुझे ये बात किसी को बता देनी चाहिए थी। पता नहीं वो कौन था, नज़र तो नहीं आया। आवाज़ से थोड़ा बूढ़ा इंसान लग रहा था। मैंने उन पैसों को उठा लिया। अब मैं क्या करती? मैंने दोबारा से खिड़की खोली और वो अभी भी शायद वहीं पर बैठा था और कहा, अपने पैसे वापस ले ले, क्योंकि मुझे डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। मैं ये काम नहीं करना चाहती थी और बाहर कोई भी नहीं था। फिर सोचा कि शोहर से कह दूंगी कि मुझे ऑर्डर मिल गया है, क्योंकि मेरे शोहर ने तो पहले भी मना नहीं किया था। मैंने अपने शोहर को कहा कि मुझे ऑर्डर मिला है, ये देखो। उन्होंने खुद पैसे दिए कि आप सामान लेकर चीज़ बनाएं और हम आपसे ख़रीद लेंगे। मेरे शोहर ने कहा कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, तुमने घर बैठकर ही ये काम करना है, लेकिन अम्मी को मसला हो सकता है। मैंने कहा कि आप अम्मी को समझाएं, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। ये रस्म रिवायत ये सारी अपनी जगह होती हैं, ये इंसान का पेट नहीं भर सकती हैं। इंसान को हर रोज़ पैसों की ज़रूरत होती है और मैं आपका साथ देने की बात कर रही हूँ, आपसे कोई फरमाइश नहीं कर रही। मेरे शोहर को तो मैंने किसी तरह से मना लिया और उसने कहा कि ठीक है, तुम ये काम करो, अगर अम्मी तुम्हें कुछ कहें तो कह देना कि मैंने तुम्हें इजाज़त दी है, तुम मेरी बीवी हो और तुम पर मेरा हुक्म चलेगा। शुक्र है कि मेरे शोहर ने ऐसी बात कही। उसके बाद मैंने मिठाई बनाई और खिड़की के पास ही रख दी। मुझे लगा कि वो शख्स आएगा, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो मेरी उस छोटी सी टोकरी में मिठाई नहीं थी, उसकी जगह पैसे पड़े हुए थे। मैं हैरान हुई कि उसने पहले भी तो पैसे दिए थे, अभी पैसे नहीं देने चाहिए थे, लेकिन उसने सामान के पैसे अलग रखे थे और मिठाई की कीमत अलग रखी थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी, और सामान के पैसे भी बहुत ज़्यादा थे, जिससे सामान के अलावा भी पैसे बचते थे। मैं बड़ी हैरान हुई और खुश भी हुई। शोहर को बताया था कि डिलीवरी दे दी है। उसने कहा कि कैसे दी? तो मैंने कहा कि वो दुकान वाला है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, शायद वहाँ काम करता है, वो आया था घर पर, उसके हाथ भिजवा दिए, ये देखो पैसे भी आ गए। शोहर भी खुश हुआ। मैंने थोड़े पैसे साइड पर रख दिए और बाकी पैसों से शोहर को कहा कि मुझे मज़ीद सामान ला के दे। अगले दिन मेरी सास ने शोर डाल दिया कि ये काम इसको नहीं करने दो, क्या ज़रूरत है ये काम करने की, घर में मिठाई बनाती है लेकिन हमें तो नहीं देती, बच्चों का दिल ललचाता है, बच्चे बेचारे मांगते रह जाते हैं, इस तरह अच्छा नहीं लगता, फिर घर में झगड़े बनेंगे। तुम्हें तो अपनी बहन का पता है ना। मेरे शोहर ने कहा कि मैंने इसे इजाज़त दी है, जो करती है इसे करने दे। अजीब बात है, किसी की नीयत पर शक करने वाली बात नहीं है, लेकिन जब औरत पैसे कमाना शुरू कर देती है तो फिर उसके काम से किसी को मसला नहीं होता। पहले सब उसको कहते हैं कि ये काम नहीं करो, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर पाबंदियाँ लगाते हैं, लेकिन जब पैसे आने लगते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। घर में पैसे आ रहे थे, मैं वो पैसे जमा कर रही थी और मेरे शोहर को भी कोई मसला नहीं था, लेकिन इस सब के पीछे एक झूठ था। वो समझता था कि मैं बेकरी वाले को ये सब कुछ देती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो एक ही आदमी मुझसे ये सब कुछ रोज़ ले लेता था। जाने इतनी मिठाई खाकर क्या करता था। इतनी मिठाई खाने से तो पेट में दर्द हो जाता होगा। मैं खिड़की के पास एक टोकरी रख देती,
वो मिठाई उठा लेता और पैसे रख देता, वापस टोकरी के अंदर ही पैसे रखता। ये सब कुछ मेरे शोहर के आने से पहले ही हो जाता। मेरे शोहर को भी शक नहीं होता, लेकिन मुझे ये तो देखना चाहिए था कि मेरे से मिठाई कौन खरीद रहा है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो शख्स ठीक से नज़र नहीं आता था और इस तरह से मिठाई कौन लेता है उसके अलावा इतने सारे पैसे दे जाता था। वैसे मुझे पैसों से मतलब होना चाहिए था, लेकिन मैं इस तरह के इंसान नहीं थी, इसलिए सोचा कि उससे कहूँ कि आप ज़्यादा पैसे क्यों दे जाते हैं। लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि शाम होते ही मैं कमरे में मिठाई रख देती और मगरिब तक वापस आती तो मिठाई गायब हो जाती। टोकरी में पैसे पड़े होते। एक तरह से ये अच्छी बात थी। मेरा शौहर रात को 10 बजे के बाद आता था, इसलिए उसे पता भी नहीं चलता था, क्योंकि उसने ये खिड़की खोलने से सख्त मना किया था। एक दिन मैंने अपनी नंद से कहा कि हम भी दरबार चलते हैं। क्यों हम दरबार नहीं जा सकते? वहाँ औरतें भी आती हैं, हमने कौन सा वहाँ पर जाकर कोई शिरक करना है, वैसे ही देखने चलते हैं कि कैसा दरबार है। मेरी नंद का कहना था कि हम पहले भी जाया करती थी, लेकिन फिर भाई ने मना कर दिया और हमारी और दरबार वालों की एक ही दीवार है, इसी वजह से हम अपने घर को बड़ा भी नहीं कर सकते, इसीलिए तो हमारा थोड़ा झगड़ा भी है। उसके बाद हम नहीं जाते। मैं जाना चाहती थी, लेकिन जिस टाइम वो मिठाई उठाता था ये सोचकर जाना चाहती थी कि उसी तरह मैं उस शख्स को देख लूँगी, लेकिन मेरी नंद ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अगर भाई को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। मैंने सोचा कि साथ ही तो है, मैं चली जाती हूँ, शौहर पूछेगा तो कह दूंगी कि साथ वालों से कोई चीज़ लेने गई थी। दरअसल हम लोग जिस जगह रहते थे ये एक छोटी सी कॉलोनी जैसी जगह थी। यहाँ पर अंदर ही अंदर सारी दुकानें बनी हुई थी, ज़्यादा घर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर यूँ समझ लें कि एक पूरा टाउन बसा हुआ था। लोग एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात भी रखते थे और मदद भी करते। यहाँ किराए के घर भी थे और इधर ये एक ही दरबार था। मैंने उस तरफ से कमरे में मिठाई की टोकरी में उसको रख दिया और एक तरफ से नकाब करके मैं दरबार में आ गई। ये वही वक्त था जिस टाइम मिठाई उठा ली जाती थी और मैं अपनी खिड़की की तरफ देख रही थी। एक साइड पर बैठ गई जहाँ से मुझे खिड़की साफ नज़र आ रही थी। जब तक वक्त पूरा नहीं हो गया मैं वहीं बैठी रही और फिर अपने घर वापस आ गई। ये महसूस करके मुझे अच्छा लगा कि किसी को पता ही नहीं चला था कि मैं घर से बाहर गई थी। मेरा शौहर भी नहीं आया था, ना ही उसका कोई फ़ोन आया था। मेरी नंद अपने बच्चों के साथ कमरे में मसरूफ़ थी और मेरी सास भी अपने कमरे में बैठी कोई ड्रामा देख रही थी, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि मैं कब घर से निकली और किस टाइम तक वापस आ गई। मुझे लगा था कि आज किसी ने मिठाई नहीं उठाई, क्योंकि खिड़की की तरफ कोई गया ही नहीं था। लेकिन जब मैं कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि टोकरी खाली थी और उसके अंदर पैसे थे, और उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे पड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शख्स मुझ पर एहसान करके बाद में मुझसे कुछ ऐसा मांग लेता जो मैं उसे ना दे सकती। मैंने किसी ड्रामे में देखा था, इसी तरह एक मर्द बेवा औरत की मदद करता है और फिर उसके घर में पैसों की वसूली के लिए आता है। वैसे भी जिस बात को छुपाना पड़े उसकी तरफ से दिल को धड़का ही लगा रहता है, और मैं ये बात सारू से छुपा रही थी। वैसे तो मेरे पास पैसे आ रहे थे, लेकिन इतने पैसे कोई किसी को नहीं देता। इतने पैसों की मिठाई नहीं थी। मेरी मिठाई से ज़्यादा अच्छी मिठाई उस गांव में मिल जाया करती थी। अगले दिन मैंने ऐसा किया कि मिठाई रखकर खुद भी वहीं बैठ गई कि कोई तो आएगा उठाने के लिए, तो मैं उसको देख लूँगी और उससे पूछूंगी कि वो ज़्यादा पैसे क्यों देता है। उसके पुराने पैसे भी वापस कर दूंगी, सिर्फ अपना हिसाब पास रखूंगी। कहते हैं कि हराम का एक नवाला भी आपके हलक में चला जाए तो आपकी दुआ कबूल नहीं होती। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए थे जिन पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं खिड़की के पास ही बैठी थी और मगरिब का टाइम हो गया। ये वही टाइम था जिस टाइम मिठाई को उठा लिया जाता, और आज मैं चाको चुप बंद बैठी थी। मैंने देखना था कि कौन है, पर एन टाइम पर मेरा शौहर वहाँ आ गया। उसने देख लिया कि मैं खिड़की खोल कर बैठी हूँ, वो भी खिड़की के बिल्कुल पास, तो मेरी तो रूह फना हो गई। वो तो यही समझ रहा होगा कि मैं बाहर मर्दों को देख रही हूँ, ऊपर से ये मिठाई वाला चक्कर कि मैं मिठाई पास रख कर क्यों बैठी थी। मुझे तो लगा कि आज मेरी खैर नहीं है। वो मुझे बहुत डांटेगा, बहुत बातें सुनाएगा, शक करेगा और
कहेगा कि तुम किस किस्म की औरत हो, मैंने जिस काम से मना किया वही कर रही हो। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो मेरे करीब आया और कहा कि यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा कि वो लाइट गई थी तो दिल घबरा रहा था, इसीलिए खिड़की खोल कर बैठ गई। अभी खोली थी, 2 मिनट हुए। इस बात पर मेरा शौहर खामोश हो गया और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। उसने दूसरा सवाल मिठाई के बारे में ही करना था, लेकिन उसने कहा कि ये टोकरी यहाँ क्यों पड़ी है। जब उसने कहा कि ये टोकरी क्यों पड़ी है तो मैं हैरान रह गई। मैंने अपने कदमों की तरफ देखा तो टोकरी पड़ी थी, लेकिन उसके अंदर मिठाई नहीं थी और आज उसके अंदर पैसे भी नहीं थे। मैं हैरान रह गई कि ये मिठाई किसने उठाई, क्योंकि जब मेरा शौहर कमरे में आया तो मिठाई यहीं पर थी। लगता है तुम्हारी तबीयत ख़राब है, एक एक मिनट के बाद कहाँ खो जाती हो। मैंने कहा कि ऐसे ही इसको यहाँ रखा था, बस ये टोकरी मैंने खुद बनाई है ना, इसको अपने पास रख कर बैठी थी। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, तुम मेरे लिए चाय बनाओ, उसके बाद खाना लगा देना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आज जल्दी आ गया, काम ख़त्म हो गया था। मैंने कहा कि ठीक है। मेरा शौहर बाथरूम में चला गया वज़ू करने के लिए। मैंने टोकरी उठाई तो आज पैसे उसके नीचे पड़े हुए थे और आज भी पैसे ज़्यादा थे। मेरा दिमाग घूम रहा था, ये सब कुछ क्या हो रहा था। ये मिठाई टोकरी के अंदर से गायब कैसे हो रही थी, और दिन ब दिन इतने ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे थे, और उन पैसों में इतनी बरकत थी, ये पैसे ख़त्म ही नहीं होते। ज़्यादातर पैसे तो मैं जमा करती थी, क्योंकि मैंने अपने शौहर को कहा था कि हम कोई घर की बड़ी चीज़ ले लेंगे। लेकिन एक दिन मैं वो पैसे लिए सामान लेने चली गई और मैं इतना हैरान हुई कि मैंने सारा सामान ले लिया, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा सामान भी लिया। अपनी नंद के बच्चों के लिए भी चीज़ें ले ली और मेरा भी दिल पड़ा तो अपने लिए भी सेब ले लिए मैंने, लेकिन फिर भी पैसे बच गए। और आज जो कुछ हुआ ये भी अजीब था। मेरे शौहर ने मुझे खिड़की के पास बैठे देख लिया, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया। ये बात तो काफ़ी अजीब थी। उसको तो गुस्से से लाल पीला हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने कोई बात नहीं की, बल्कि उसका मूड खुशगवार था। जो कोई भी मिठाई लेकर जा रहा था, मेरी उससे बात नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे बात ज़रूर करनी थी। इस दफ़ा मैंने ऐसा किया कि मिठाई की टोकरी के साथ एक कागज़ पर यह भी लिख कर रख दिया कि तुम कौन हो, ये सब कुछ क्या कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए मिठाई नहीं बनाऊंगी जब तक तुम मुझे अपनी सच्चाई नहीं बताओगे। आज मैं टोकरी के आसपास बिल्कुल नहीं गई थी, क्योंकि मुझे जो कहना था वो मैंने लिख दिया था। लेकिन इस दफ़ा साथ कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो पर्ची वहाँ से गायब थी। अगले दिन मैं कमरे में बैठी थी, अपना काम कर रही थी, जब मुझे अचानक से वही वाली आवाज़ आई। वो कोई बूढ़ा इंसान लग रहा था। उसने मेरा नाम पुकारा, महमूना। उसने कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर कि तुम बिल्कुल डरोगी नहीं। लेकिन मैं तो पहले ही डर रही थी। मैंने कहा कि क्या मतलब। उसने कहा कि मैं कई सालों से इसी दरबार पर रहता हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। मैं सोचने लगी कि शायद कोई फ़कीर है, लेकिन फ़कीर के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं कि वो अपनी ज़ुबान के लिए इतने सारे पैसे मुझे दे दिया करता था। उसने कहा कि मैं कोई फ़कीर या कोई नशा करने वाला इंसान नहीं हूँ, और ना ही मैं इंसान हूँ, मैं एक जिनज़ादा हूँ जो इसी दरबार पर न जाने कितने 100 सालों से रह रहा है। उस दिन तुमने यहाँ मिठाई गिरा दी थी, मैंने वो खाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे लिए मिठाई बनाया करो, मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। फिर मैंने सोचा कि ये ज़रूर मजाक कर रहा है, ये सब कुछ झूठ है। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। तुम खुद याद करो कि उस दिन क्या हुआ था। तुम्हारी आंखों के सामने से मिठाई गायब हुई थी, क्योंकि मुझे मिठाई उठाने के लिए हाथ बढ़ाने या अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास इतने पैसे भी तो होते हैं। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी। ये जो कुछ भी पहले दिन से हो रहा था वाकई अजीब था। मैं तो पत्थर बनी बैठी उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन पलट कर भी नहीं देख रही थी कि जैसे पलट कर देखूंगी तो वाकई पत्थर की बन जाऊंगी। उसने कहा कि तुम्हारी नीयत साफ है और तुम बहुत अच्छा मीठा बनाती हो, इसीलिए तो मैं तुमसे ये मिठाई खरीदता हूँ।
میرے تو اب کچھ اور بھی دوست ہیں جن کو یہ بہت اچھی لگنے لگی ہے، اسی لیے میں زیادہ پیسے دیتا ہوں تاکہ تم زیادہ مٹھائی بنا سکو۔ اگر تمہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تم فکر نہیں کرو۔ اس دن جب تمہارا شوہر کمرے میں آیا تو میں نے اس کا دماغ پڑھ لیا تھا، وہ بہت غصے میں تھا، تمہیں بہت بری باتیں سنانے والا تھا، لیکن میں نے اس کا موڈ بدل دیا اور اس کا موڈ اچھا ہو گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی بات سننی پڑے اور پھر تم یہ کام کرنا چھوڑ دو۔ مجھے پتا ہے کہ شاید تم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہو، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی طرح یہ کام کرتی رہو، کبھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اس بات کی گارنٹی میں لیتا ہوں، سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ اس نے کہا کہ بس تم ڈرو نہیں، سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ٹوکری میں پھر سے پیسے موجود تھے۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی جن زیادہ مجھ سے مٹھائی خرید رہا ہوگا، پر یہ بات میں نے پرانے قصے کہانیوں میں سنی تھی کہ اس طرح کے درباروں میں اکثر بہت ہی پرانے جنزاد اور جنات وغیرہ رہا کرتے تھے، اور یہ دربار بھی بہت زیادہ پرانا تھا، اتنا پرانا تھا کہ ہماری کھڑکی کی اس کی زمین سے لگ چکی تھی، یعنی کہ ہمارا گھر بہت نیچے ہو گیا تھا۔ اس دربار کو بار بار بنایا گیا تھا اور ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے۔ کچھ دن تک یہ بات میرے دماغ میں گھومتی رہی، اس کے بعد میں نارمل ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اگر میں بیکری پر بھی مٹھائی رکھواتی تو اسی طرح سے میری کمائی نہیں ہونی تھی۔ میں نے سوچا کہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی آ رہے تھے اور پیسوں میں بہت برکت بھی ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ جتنے میرا شوہر 6-4 ماہ میں بنایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ بھی خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ گھر کی کچھ چیزیں لیتے ہیں، لیکن جب میں اگلے دن وہ پیسے نکالنے لگی، کیونکہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ آ جاؤ بازار چلتے ہیں، میں تیار ہو چکی تھی۔ میں نے پیسے نکالنے کے لیے الماری کا رخ کیا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پیسے موجود نہیں تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی، ساری الماری تلاش کر لی لیکن پیسے نہیں تھے، پورے کمرے میں تلاش کر لیا۔ شوہر بھی اندر آ گیا کہ تم باہر کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے اسے یہ ساری بات بتائی۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے ایسا منظر دیکھا کہ حیران رہ گئے۔ میری نند کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک بہت ہی مہنگا موبائل تھا جس پر وہ گیم کھیل رہا تھا اور سرعام بیٹھا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کا باپ تو ان کو پوچھتا نہیں ہے اور اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کو 70-80 ہزار کا فون لے سکے، اور آج تمہارے پیسے بھی غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے پیسے اسی نے چوری کیے تھے اور اپنے لیے موبائل خریدا تھا، کیونکہ اس کے بچے بہت بگڑے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری محنت کی کمائی تھی۔ میرے شوہر کو میں نے کہا کہ بات کرنی چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ چھوڑو، بات کریں گے تو کون سا مان لیں گے، الٹا کہیں گے کہ ہم نے ان پر الزام لگایا ہے۔ میں تمہارے لیے تالے والی چھوٹی سی الماری لے آؤں گا، تم اپنے پیسے اس کے اندر رکھا کرنا۔ میں نے کہا کہ میری 3-4 مہینے کی محنت تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں گھر کی کوئی چیز لوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی، اس نے کہا کہ ایک دفعہ ہمارے گھر کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن بات کر کے فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ فساد بنائیں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، ساری رات روتی رہی اور بہت پریشان ہوئی۔ اب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، بس وہی روز کے جو پیسے مل رہے تھے، لیکن اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے کہ ایک دن ایک لڑکا ہمارے گھر آیا۔ وہ ہمارے گھر میں پانی پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں وہ بھائی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بس اتنا ہی بتایا تو ہم باہر بھاگ اٹھے۔ دور سے دیکھا تو 112 والے اسے لے کر جا رہے تھے، شاید میرے شوہر کو ہی لے جا رہے تھے۔ ہم ان کے پیچھے جانے لگے۔ میری ساس نے کہا کہ سنبھالو خود کو، ہمیں کوئی رکشہ لینا ہوگا۔ ہم رکشے میں بیٹھ گئے، ڈاکٹر کے پاس لے کر انہیں جا رہے تھے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور اس کو بتایا کہ ہم رشتہ دار ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں سرجری کرنی ہوگی اور شاید کوئی آپریشن بھی کرنا پڑے، 1.5 لاکھ روپے کا انتظام کریں۔ یہ سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے کیونکہ ہمارے پاس 1.5 لاکھ روپے بالکل بھی نہیں تھے۔ میرے شوہر کی کمائی بھی آ چکی تھی، اس کی جیب سے پیسے نکلے تھے، وہ ڈاکٹر نے ہمیں واپس کر دیے جو 3-4 ہزار روپے تھے، اور میرے پیسے پہلے چوری ہو چکے تھے۔
मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इलाज शुरू कर देंगे, लेकिन पैसों का इंतज़ाम आप लोग ज़रूर करें। ये भी डॉक्टर की इंसानियत थी कि उसने बिना पैसों के इलाज शुरू कर दिया, लेकिन पैसे देने तो ज़रूर थे। उस घर के हालात पहले ही बुरे थे, यहाँ तो बेचने के लिए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं जाकर उस खिड़की के पास बैठ गई कि वो मेरी मदद करेगा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मेरा शौहर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, मेरी मदद करो। मुझे लगा वो सुन रहा है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मैं बाद में तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, बार बार बोल रही थी, इस उम्मीद पर कि कोई ना कोई मेरी बात सुन रहा होगा। और ये वही वक्त था जिस टाइम वो आया करता था, लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं आ रहा था। काफ़ी देर में रोती रही। बिलाखिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ये सब कुछ मुझसे झूठ और मजाक किया जा रहा था। कोई जिन ज़्यादा नहीं है, नहीं तो वो मेरी मदद ज़रूर करता। शायद वो कोई आम सा इंसान था जो मेरे साथ ये सब मजाक कर रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बिलाखिर वालिद साहब को फ़ोन कर दिया। उनके पास भी हाथ में तो इतनी बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इंतज़ाम करवा दिया। वो फ़ौरन आ गए। आज पता चला कि जब बेटी को तकलीफ़ होती है तो सबसे ज़्यादा बाप का दिल दुखता है। उन्होंने आकर डॉक्टर से बात की, उनको पैसे दिए। जब तक डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मेरा शौहर ख़तरे से बाहर है, वो अस्पताल से हिले भी नहीं। उसके बाद मुझे अपने साथ ले गए कि तुम भी थोड़ा आराम कर लो। और फिर मैं सुबह वापस आई तो मेरे शौहर को होश आ चुका था और उसकी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। वो दिन बहुत बुरे थे। उसके बाद शौहर को घर लेकर आ गए। मैं उसकी खिदमत करती रही थी। एक दिन मैं उसके पास ही बैठी थी कि खिड़की पर दस्तक हुई। मेरे शौहर ने कहा कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कि मुझे पता है क्या हो रहा है। मैंने खिड़की खोली और गुस्से में कहा कि तुमने कहा था कि मेरी मदद करोगे, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगी क्योंकि तुमने मुसीबत में मेरी मदद नहीं की। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए कोई मिठाई नहीं बनाऊंगी। उसके बाद खिड़की बंद कर दी। मेरे शौहर ने कहा कि ये सब क्या है। मैंने शौहर को सब कुछ बता दिया। पहले तो उसे यकीन नहीं आया, फिर उसने कहा कि मेरे बाबा मुझे कहानी सुनाया करते थे। क्योंकि ये कमरा पहले बाबा और अम्मी का होता था, तो वो कहते थे कि इसमें कुछ अजीब व गरीब किस्म की हरकतें होती हैं, क्योंकि ये खिड़की दरबार की तरफ खुलती है। जब मैंने तुम्हें कहा था कि इस खिड़की को ना खोलना, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा गैरत में आ रहा था या मैं तुम पर पाबंदी लगा रहा था, बल्कि मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे मेरे बाबा बताया करते थे कि यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें होती हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम डर कर इस कमरे में रहने से इनकारी हो जाओ, फिर यहाँ से भाग जाओ या इतना डर जाओ कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। मैंने कहा कि मुझे डर तो बहुत लगा था, लेकिन फिर भी मेरा काम चल रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी और किसी ने मेरी मदद नहीं की, जबकि उसने कहा था मेरी मदद करेगा। मेरे बाबा ने कर्जे लेकर हमारी मदद की। वो मुझसे 1 रुपया भी वापस नहीं लेंगे, लेकिन मैं उनको पैसे वापस करना चाहती हूँ। मेरे शौहर का कहना था कि मैं ठीक हो जाऊँगा तो पैसे वापस कर देंगे। अब रोज़ रात को मेरे कमरे में दस्तक होती थी, लेकिन मैं खिड़की नहीं खोलती थी। मैं कहती थी कि मैं नाराज़ हूँ, गुस्से में हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। मेरा शौहर भी मुझे कहता कि भूल जाओ ये सब, जवाब ही ना दिया करो। मैंने उसी कॉलोनी में जो बेकरी थी उससे बात कर ली, उसको जाकर सैंपल भी दिखाया। उसने कहा कि आपकी मिठाई तो अच्छी है, लेकिन उसने मुझे जो ऑफ़र बताई उसमें मेरा काफ़ी नुकसान हो रहा था। वो 70% पैसे अपने पास रख रहा था और 30% मुझे दे रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि दुकान मेरी है और सामान भी मैंने ही बेचना है। वो अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। मुझे बहुत मायूसी हुई। मेरा शौहर बिस्तर पर पड़ा था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने कह दिया कि ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा थी और पैसे कम थे। मुझे अफसोस हो रहा था। शायद उसको भी पता था कि मैं मजबूर हूँ, इसीलिए मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। ये दुनिया ऐसे ही करती है और इंसान तो ऐसे ही है। लेकिन एक जिनज़ादे ने भी वक्त आने पर मेरी मदद नहीं की। मैं बहुत परेशान थी। परेशानी की हालत में मैं दरबार के अंदर चली गई। दरबार पर दुआ नहीं मांगी थी, बस दिल के सुकून के लिए चली गई। वहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा था। एक कोने में बैठी थी।
जब एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आकर बैठ गया। पहले तो वो मुझे देखता रहा, फिर अजीब नज़रों से देखने लगा। मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने मेरा नाम पुकारा और मैं उसकी आवाज़ पहचान गई कि ये वही जिनजाद है। मैंने उसको गौर से देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी लग रहा था, लेकिन शायद वो भेस बदल कर आया था। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, मुझे सब कुछ पता है, तुम बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो, तुम फिर से मेरे लिए मिठाई बनाया करो। मेरा कहना था कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे, तुम तो मेरा फ़ायदा उठा रहे थे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगी। मैं वहाँ से गुस्सा होकर वापस आ गई थी, लेकिन जब मैं घर आई तो एक अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि मेरे शोहर की टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अपने पैरों पर खड़ा था, बस थोड़े बहुत जख्म रह गए थे। मैं हैरान हो गई कि डॉक्टर्स का तो कहना था कि 6 महीने तक ये अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकेगा और शायद उसके बाद भी कभी ना चल सके, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आप ये बात मरीज को ना कहें, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा। और मेरा शौहर अपने कदमों पर आज खड़ा था। उसने कहा कि अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे प्यास लगी थी, घर में कोई नहीं था और कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था। मैं पानी पीने के लिए उठा तो ज़मीन पर गिर गया, लेकिन उसके बाद अचानक से मुझे ऐसे लगा कि मेरी टांग बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं खड़ा हो गया। यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। मेरा शौहर भी हैरान था। मैं भी थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैंने देखा कि खिड़की के आगे मेरी वही वाली टोकरी पड़ी हुई थी, मैं हैरान हुई क्योंकि ये टोकरी मैंने यहाँ नहीं रखी थी। उसके ऊपर एक रुमाल भी था, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा था जैसे टोकरी के अंदर कोई चीज़ है। मैंने अपने शौहर को भी इस तरफ मुतवज्जे करवाया। वो भी थोड़ा परेशान हो गया कि क्या हो सकता है इसके अंदर। हम लोग काफ़ी डर गए क्योंकि मेरे शौहर को भी लगता था कि जिस शख्स ने मुझसे ये बात कही थी वो कोई जिन ज़्यादा नहीं बल्कि आम इंसान था। लेकिन इस बात पर उसको थोड़ा यकीन भी था क्योंकि उसने अभी तक मेरी मदद ही की थी, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया था। मैं आगे बढ़ी तो मेरे शौहर ने कहा कि पता नहीं इसके अंदर क्या हो। मैंने कहा कि नहीं, मेरा दिल कहता है कि इसके अंदर कुछ बुरा नहीं होगा। जब मैंने उस टोकरी पर से रुमाल हटाया तो हम दोनों के कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो टोकरी पैसों से भरी हुई थी। उसमें इतने पैसे थे कि अगर उनको गिनते तो शायद वो लाखों रुपए थे। हम लोग हैरान रह गए। हमें कुछ ऐसा देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब कि वो वाकई झूठ नहीं बोल रहा था। वो जिन ज़्यादा ही था, लेकिन उस वक्त शायद यहाँ पर मौजूद नहीं था। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मेरा शौहर भी हैरान रह गया। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। मेरे शौहर ने अपने बहनोई को कॉल की कि अपनी बीवी को आकर यहाँ से ले जाए। अगर उसने लेकर जाना है तो। उसका कहना था कि मैं तो कब से उसको बुला रहा हूँ, ये खुद ही वापस नहीं आती। इस बात पर हम लोग हैरान रह गए क्योंकि मेरी नंद कहती थी कि वो मुझे फ़ोन तक नहीं करता और कहता है कि वहीं पर बैठी रहो। इसका मतलब है कि वो झूठ बोलती थी क्योंकि वो खुद यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। अपने घर में जाकर उसे काम करने पड़ते थे और यहाँ वो महारानी की तरह रहती थी। मेरे शौहर ने कह दिया कि तुम कल सुबह ही आ जाओ, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ रुखसत कर दूंगा। और फिर वो आया और मेरी नंद और अपने बच्चों को लेकर वो वहाँ से चला गया। मेरे शौहर ने अपनी माँ को भी एतमाद में लिया और कहा कि लॉटरी निकली है, लेकिन ये बात किसी को बतानी नहीं है। हम लोगों ने इस घर को बेचा नहीं बल्कि उसी को अच्छे तरीके से बना लिया क्योंकि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। उसके बाद मेरे शौहर ने कारोबार शुरू कर लिया। घर में जो भी चीज़ नहीं थी वो सारी की सारी आ गई। मेरे शौहर की सेहत भी अच्छी हो गई। अब मुझे किसी भी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ता था। जो भी मैं चाहती थी मैं ख़रीद सकती थी और पकाकर खा लेती थी। बाबा के कर्जे भी उतार दिए। उन्हीं दिनों मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आज इस बात को 6 महीने हो गए। मेरा शौहर बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में भी कोई मसला नहीं है। हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए। मैं रोज़ मगरिब से पहले मिठाई बनाकर उसी टोकरी में उसी खिड़की के आगे रख देती हूँ और थोड़ी देर के बाद वो मिठाई वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी जगह पैसे आ जाते हैं। ये सिलसिला मैंने बिल्कुल भी नहीं तोड़ा और मैं यहाँ से जाना भी नहीं चाहती
کیونکہ مجھے ساری زندگی یہ کام کرنا ہے۔ مجھے یہ کام کر کے اچھا لگتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، کیونکہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہماری ساری زندگی بدل گئی۔ ہم اپنی زندگی کے 10-12 سال لگا کر بھی شاید اتنے پیسے کما تو لیتے، لیکن اتنے پیسوں کو جمع تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ زندگی میں ساتھ ساتھ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو ہمارے لیے اس نے کیا وہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتی، کوئی اس پر یقین بھی نہیں کرے گا، لیکن یہ بات صرف مجھے اور میرے شوہر کو ہی معلوم ہے، اور میں اس بات کا کبھی ذکر بھی نہیں کرتی، کسی کو بھی نہیں پتہ چلنے دیتی، لیکن میں شکر ادا کرتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔